Hello my dear student, in this video I am going to discuss the questions on analyzing the velocity time graph, displacement time graph and acceleration time graph. So in this question the velocity time graph of an object is given and you have to find the total distance covered by the object. This is the velocity time graph of an object and you have to find the total distance covered by the object, total displacement covered by that object and the acceleration between A to B section and B to C section. Okay, so we know that area under velocity time graph, write down area under velocity time graph, VT graph gives what it gives. See, velocity is meter per second, this is in second, so if you multiply you will get second cancel, you will get meter. Okay, so if we find the area under velocity time graph, we will get displacement. So this will give what? This will give displacement. Okay, so what is the total displacement? So total displacement is, we have to find the area of all these three. How to find the area? This is area number 1, this is area number 2, this is area number 3, this is area number 4. So first area A1 is how much? Half, this is triangle, this part is triangle, half into base is how much? 1 and height is 5. Similarly A2 is what is A2? A2 is a rectangle. So this length is how much? This is 2, this is 1. 2 minus 1 is 1 into this height. This height is 5. This is in meter, that is 2.5, here 5. Similarly, what is A3? A3 is what? A3 is half into base is how much? This length. क्योंकि ये एक triangle है, this is a triangle and this length is how much? This is 3, this is 2. 3 minus 2 is 1. That's why you can take half into base is 1 and height is 5. So you will get A3 in meter. All these things are in meter. Now how to find A4? A4 is also a triangle. Okay, so how to find the A4 area? Half into base. Base is 3 to 4, that is this much length. So 3 to 4, the length is 1. Half into base into and the height is 3. Okay, so this is the area A1, A2, A3, A4. Now for finding displacement, what you have to do? First you have to find distance. So for finding distance, you have to add all the areas. That is, for finding distance, total distance is what? A1 plus A2 plus A3 plus A4. You can comment me the answer. You find all this value, you put all this value and you can comment me the answer. This is in meter. Similarly, for finding displacement, how to find displacement? A1 plus A2 plus A3 minus A4. Because this area is under the because this area we have to take for finding displacement, this we have to take negative, that's why minus A4. Now put all the value and you can comment me the answer. So these two things over. Now we have to find the acceleration from A to B. A to B acceleration, how can we find? So acceleration formula is what? V minus u upon t. So if we want to find the acceleration between A to B, this is A, this is B. How to find A to B? So this will become velocity at A. This is final velocity minus initial velocity upon time. So final velocity is what? How much? This is 5. Initial velocity is how much? 5. Okay, this is 5. So 5 minus 5 is 5 minus 5 is any time. This time interval is how much? A to B's time interval is 2 minus 1, that is 1. So you will get 0 meter per second square.
Similarly, for finding acceleration, A is acceleration from B to C. How to find B to C? Okay, same formula, V minus U upon T. Okay, so B to C, V is final velocity, U is initial velocity, T is time. So you tell me what is the final velocity from B to C? This is B, this is C. So yeah, the final velocity is this, that is 0. So you have to put here 0. What is initial velocity? Initial velocity is from in between B to C. The initial velocity is 5. That's why you put here 5. And what is the time? Time interval is 3 minus 2, that is 1. So if you solve, you will get -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब देखो मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूँ. एक इंसान, कोई भी इंसान है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी गई है. हमें फाइंड करना है कि वो इंसान कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उस इंसान या उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ए से बी कितनी होगी और एक्सेलरेशन बी टू सी कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट किसी तरह का मोशन कर रहा था और उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी गई है. मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब टाइम इंक्रीज कर रहा है. 0 था पहले, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ. तो उस इंसान की या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज आ रही है. 0 से 1 तक में इसकी वेलोसिटी 5 हो गई, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड. फिर 1 से 2 तक में, समझ रहे हो ना? तो टाइम 0 में वेलोसिटी कितनी है? 0 है, सॉरी दिस इज 0. टाइम 1 में वेलोसिटी कितनी है? 5 है. टाइम 2 में वेलोसिटी कितनी है? 2 सेकेंड में वेलोसिटी 5 है. ठीक है. 3 में कितनी है? 3 में 0 है. एंड 4 में कितनी है? -3 है वेलोसिटी. ठीक है. तो कोई इंसान आगे जा रहा है, पहले 0 था, स्टार्ट किया, 1 सेकेंड हुआ, उसकी स्पीड बढ़ गई. फिर 2 सेकेंड तक 5 की स्पीड से चला. फिर तीसरे सेकेंड में स्पीड कम होते होते 0 हो गई. फिर 1 सेकेंड के बाद, है ना, 3 सेकेंड, चौथे सेकेंड में क्या हुआ? वो रिवर्स होने लगा, गाड़ी रिवर्स जाने लगी, तो ये नेगेटिव हो गया. तो डिस्टेंस जब भी आपको निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है? एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया क्या बताता है? लेंथ. एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी होता है. ठीक है, L इंटू बी. तो लेंथ क्या है? ये लेंथ है और ये हाइट है, ब्रेथ है, इसको मान लो. तो लेंथ में तुम्हारा कौन है? लेंथ में है मान लो टाइम, और ब्रेथ में इसको हम ब्रेथ मान रहे, तो ये क्या हो जाएगा? टाइम है. और इधर क्या है? वेलोसिटी है, यानी मीटर पर सेकेंड. और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें क्या देगा? मीटर. तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स व्हाट? इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस भी दे सकता है ना. एरिया अंडर, अगर स्पीड टाइम ग्राफ रहता तो डिस्टेंस मिलता, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है. स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीज़ है. बस एक चीज़ याद रखना, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है कि वेलोसिटी में स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा और इसे माइनस करना पड़ेगा. A1 आप निकाल लोगे 2.5, A2 5, इस तरह से आप सॉल्व करना. ये सारे वैल्यू को पुट करके मुझे आंसर कमेंट करना. और एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ए से बी तक में वेलोसिटी में क्या चेंज आया? ए से बी तक में बताओ. ए में 5 है, बी में भी 5 ही है. टाइम तो इंक्रीज किया, 1 से 2 हुआ, लेकिन स्पीड क्या थी? कांस्टेंट. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. यहाँ पर स्पीड क्या थी? 0, और बढ़ते 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 कितनी हो गई? 5 तक हो गई. तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव. और यहाँ पर स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव. ठीक है. तो यहाँ से रिटार्डेशन हो रहा है. ठीक है, स्पीड घट रही है ना. तो एक्सेलरेशन बिटवीन ए टू बी आपने निकाला, तो कैसे निकालोगे? स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0. देखो एक्सेलरेशन निकालने का v माइनस यू अपॉन टी. v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. तो a से b तक में जो है, a से b में बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी और ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल भी कितनी है? 5, और इनिशियल भी कितनी है? 5. सो 5 माइनस 5 कितना हो? क्योंकि देखो यहाँ है ना, स्ट्रेट है, तो ये वैल्यू भी 5 है और ये वैल्यू भी 5 है. 5 माइनस 5 कितना मिलता है? 0 मिलता है. ठीक है. चलो, उसी तरह अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना था B से C में, तो कैसे निकालेंगे? B से C में बताओ, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पर देखो 5. सो 0 माइनस 5. तो 0 माइनस 5 करेंगे,
इसके बीच का टाइम इंटरवल कितना था 1, इसे हमने पुट किया तो हमें माइनस मिला, मतलब स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्वेश्चन और उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्वेश्चन। यू कमेंट मी द आंसर। ओके, थैंक यू।